Good morning, students. Welcome to RPDM Academy. As yesterday, I wind up my lecture with non-cooperation movement. So today, I will switch on my lecture with the limits of non-cooperation movement. So before moving further, let's have a recapitulation of NCM, which was launched in 1920 by Mahatma Gandhi ji. As per that, non-cooperation, not to cooperate with the British, a campaign was organized at large scale. Even by middle class, the boycott of all the services, surrender of all the titles, even students as well as lawyers, they had given up their practicing, and they had left the British schools or British run the school, and they have joined Indian institutions. But this this movement did not get momentum. The reason is that we would not have all sufficient resources that would continue for long time period to oppose in order to oppose the British. Okay, so there were some limits of NCM why non-cooperation movement was not spread or continue for long period of time. The reason was lack of institutions. Indian would not have sufficient institutions. So after some time, this movement became slow, and the lawyers, the students again joined the institutions, the universities and the courts. Next we have khadi was very expensive. As in average to boycott foreign goods, a trend was started to use khadi clothes in order to show the symbol of sovereignty in India. But it was too expensive compared to machine made material which was provided by British to Indian. So this was also a limit that NCM was not continue for long period of time in India. Next, people were not fighting for common aim. कि लोग जो लड़ रहे थे, जो लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उसके पीछे लोगों का एक सिंगल एम नहीं था, कॉमन एम नहीं था कि उन्हें फ्रीडम चाहिए. इवन पीजेंट्स के लिए फ्रीडम का मतलब क्या था कि उन्हें टैक्स से छुटकारा मिल जाए. ऐसे ही जो अलग सेक्शंस थे बेटा, जैसे कि जो वर्कर्स थे उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, उन्हें हाई वेजेस मिले, उन्हें गुड वर्किंग कंडीशंस मिले. सो देयर वाज नो सिंगल कॉमन एम फॉर व्हाट पीपल वर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. सो दिस वाज आल्सो अ लिमिट ऑफ एनसीएम. नेक्स्ट वी हैव, यू कैन सी हियर, डिफरेंट नोशंस ऑफ स्वराज. हर किसी के लिए स्वराज का अपना अपना मीनिंग था. जैसा आपने देखा yesterday I told you कि आंध्र प्रदेश के गुडन हिल्स में ट्राइबल्स में, like on the name of Gandhi ji and INC, they performed the activities against, Gandhi ji even did not permit them. ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म की जो गांधी जी ने अलाउ की ही नहीं थी. तो हर किसी के लिए स्वराज का मीनिंग क्या था बेटा, डिफर था. So all these are the points which limitize NCM, or you can say that NCM did not get momentum. Fine. So let's move further. As ये सारा सिनेरियो हुआ और 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने दुखी होकर क्या करना पड़ा, एनसीएम को कॉल ऑफ करना पड़ा, विथड्रू करना पड़ा बिकॉज ऑफ वायलेंस. फाइन. हियर यू कैन सी फॉरवर्ड टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस. इवन के एनसीएम और सीडीएम में क्या डिफरेंस था. एनसीएम में तो सिर्फ बॉयकॉट किया गया था, सपोर्ट नहीं किया. इवन जो सीडीएम था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था, इसमें क्या किया गया बेटा जी, इसमें ना सिर्फ बॉयकॉट किया गया, इवन जो ब्रिटिश रूल थे उनको भी डिफाई किया गया, उनको ब्रेक किया गया कि असहयोग के साथ साथ अवज्ञा करना. सिविल डिसओबीडियंस नॉन एज सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी विनय पूर्वक, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, विनम्रता के साथ, पोलाइटनेस के साथ क्या करना है, ब्रिटिश रूल को ब्रेक करना है. इट वाज द मेन एजेंडा ऑफ सीडीएम. फाइन. बट सीडीएम स्टार्ट होने से पहले ही ये सारा सिनेरियो चल रहा था, एनसीएम का सिनेरियो चल रहा था. उसी ड्यूरेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या चल रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देखा कि भाई 1922 में क्या हो गया, गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो विथड्रू कर दिया. अब देयर वाज अ टसल
even in Indian National Congress also, and they have decided that they would start, you know, a movement which could be organized at large scale, more aggressive way में उसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। एंड फॉर द सेम क्या किया गया बेटा कि स्वराज पार्टी बनाई गई। कब बनाई गई? 1923 में। किसके द्वारा बनाई गई? एक नंबर में एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सी.आर. दास एंड मोतीलाल नेहरू। किसने बनाई ये पार्टी? सी.आर. दास, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। किस पर्पस के लिए बनाई? इनका ये मानना था कि अब हमें क्या करना है, हमें काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है। और काउंसिल इलेक्शंस में इंडियन को भी सीट्स मिल गई थी। किस एक्ट के अंडर? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 के अंडर, जिसमें भारतीयों को भी क्या दिया गया? काउंसिल ऑफ इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का राइट दिया गया, ठीक है। तो अब स्वराज पार्टी बनाई गई। स्वराज पार्टी बनने के पीछे का मुद्दा यही था, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास जी ने बनाई। उनका ये मानना था कि बाहर रह के हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो वी हैव टू पार्टिसिपेट इन द काउंसिल इलेक्शन अगेन, so that we could also get some power in our hands to oppose the British policies. But इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू एंड जो यंग लीडर्स थे जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वो ये चाहते थे कि उन्हें इन्हीं एक्शंस को लार्ज स्केल पर लॉन्च करना। सिर्फ इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से हमें पावर नहीं मिलेगी और हम लार्ज स्केल पर ब्रिटिश को क्या नहीं कर पाएंगे, लाइक एक तरह से डिफेंड, ब्रिटिश को हम हरा नहीं पाएंगे, डिफीट नहीं कर पाएंगे, फाइन। तो इसके पीछे उन्होंने लाइक ये टसल चल रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही अमंग द लीडर्स, एंड दिस सिचुएशन क्रिएट अ न्यू पॉलिटिकल एंड सोशल एरा in 1920 ऑनवर्ड्स। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि सोसाइटी में क्या हो रहा था? इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। इकोनॉमिक क्राइसिस से मतलब क्या है कि चीजों के जो प्राइसेस हैं या तो वो एक्सट्रीम बढ़ जाना, इन्फ्लेशन हो जाना, या क्या हो जाना, डिक्लाइन हो जाना। सो दिस हैपेंड देयर फ्रॉम 1926 to 1930, means till 1926 all the agricultural products prices were declined completely, ठीक है। there was complete shortage of economy and people were suffering from the problems as till 1930 prices of agricultural products were declined completely। क्यों? ऐसा कारण क्या था? क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा 9th क्लास में कि 1928 ऑनवर्ड्स 1932 तक क्या हो गया था? इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। कहां पर आया था? यूएस में आया था। और यूएस की वजह से क्योंकि ट्रेड रिलेशन हो रहा था, हम ब्रिटिश के अंडर कॉलोनी थे और हम जो कॉलोनी थे, तो इससे क्या हो गया? अब क्राइसिस आने से हमारा जो ट्रेड था वो क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया, कम हो गया पहले की बजाय, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उनके जो प्राइसेस थे वो क्या हो गए? कंप्लीटली डिक्लाइन हो गए, ठीक है। और इस चीज को सफर करना पड़ा लार्ज स्केल पर इंडिया में, ठीक है। क्यों? एंड इसके साथ क्या होता है? अब इन सारी चीजों का, इन सिनेरियो को देखते हुए ब्रिटेन में उस टाइम थी टोरी गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट थी? टोरी गवर्नमेंट। सो टोरी इज अ वर्ड दैट that gives its meaning itself कि टोरी was a kind of philosophy, टोरिज्म। टोरी किसी पर्सन का नेम नहीं है, ये एक फिलॉसफी थी जिसके अकॉर्डिंग कंजर्वेटिव को फिर से क्या किया गया? कंजर्वेटिव्स को सपोर्ट किया गया। कंजर्वेटिव का मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स होना, ट्रेडिशनल होना, यानी कि जो एस्टेब्लिश्ड सोसाइटी के जो बिलीफ्स हैं उन्हीं को फॉलो करना, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ब्रिटेन में उस टाइम पर टोरी गवर्नमेंट बनी हुई थी। उन्होंने क्या डिक्लेरेशन कर दी? उन्होंने डिक्लेरेशन की भारत की स्थिति का फायदा उठाने के लिए कि उन्होंने एक स्टैट्यूटरी कमीशन फॉर्म किया। कब? 1927 में बना था ये कमीशन, ठीक है, जिसका नाम पड़ा Simon Commission under the leader because it was headed by Sir John Simon. That's why it got its name Simon Commission. And for kind of information, let me tell you what was the main aim of Simon Commission. It came to India in 1928. How many total members were there? There were total 7 members in this commission. Okay? And what was the aim behind it? इसके पीछे, इस कमीशन का भारत में भेजने के पीछे का मकसद क्या था? मकसद यही था कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, भारत के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर
ये कमीशन क्या करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा, हमें सजेशन देगा, फाइन, बट this commission was not welcomed at all in India, even neither by Indian National Congress nor by Muslim League. A question arises, Muslim League, what was it? A league formed by Muslim leaders. कब फॉर्म हुआ? आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, मैंने बताया था कब हुआ था बंगाल का पार्टीशन, 1905 में हुआ था बेटा, ठीक है। और ये मुस्लिम लीग उसके 1 ईयर लेटर 1906 में कहां बना, ढाका में बना, जो आज कैपिटल है किसकी, बांग्लादेश की, ठीक है। जिसको लीड किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना। किसने लीड किया था बेटा, मोहम्मद अली जिन्ना ने लीड किया था, ठीक है, फाइन। तो ये जो साइमन कमीशन था, इट was the commission headed by Sir John Simon. उन्हीं के नेम से इस कमीशन का नाम पड़ा क्या, साइमन कमीशन। There were only 7 members in that. No matter से कितने members थे, but the matter was they all were British. वो सारे के सारे क्या थे बेटा, ब्रिटिश थे। इसीलिए इस कमीशन का विरोध किया गया भारत में, लार्ज स्केल पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया, ठीक है। हर पार्टी ने उसको क्या किया, डी वेलकम किया। डी वेलकम कैसे किया, बाय रेजिंग स्लोगन साइमन गो बैक। उन्होंने साइमन गो बैक के नारे लगाए, हर जगह ब्लैक फ्लैग्स को शो करके उनको अपोज किया गया, यानी काले झंडे दिखाए गए। इसके साथ साथ और क्या हुआ, अब इसके बदले में, अब जब देखा कि साइमन कमीशन को भारत में वेलकम नहीं किया गया, इसके बदले में जो पुलिस थी, उनको ऑर्डर मिला कि क्या किया जाए, लाठी चार्ज ओवर द क्राउड, एंड इन दैट लाठी चार्ज इंडियन लॉस्ट वन ऑफ द जेम्स ऑफ इंडिया, लाला लाजपत राय। हमने किसको खो दिया, हमारे एक ग्रेट लीडर जो कौन थे, एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस में भी विभाजन हो गया था। 1907 सूरत सेशन में विभाजन हो गया था बेटा जी, और कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स लाला लाजपत राय वी हैव लॉस्ट इन दिस लाठी चार्ज, ठीक है। हमने लाला लाजपत राय को इस टाइम लॉस्ट कर दिया बिकॉज ऑफ लाठी चार्ज, ही वाज बाउंडेड बैडली एंड ही डाइड, फाइन। सो ये सारी चीजें चली रही थी। अब देखा कि भाई इन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उस टाइम पर लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन ने अपना प्रपोजल दिया किस चीज का, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का, कि ठीक है हम आगे इस मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए क्या रखते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, जो कहां ऑर्गेनाइज होनी थी, लंदन में होनी थी, फाइन। तो व्हाट वाज इट, इट वाज अ पीसफुल conferences which would be convened in कहाँ बुलाई गई, लंदन, फाइन। जो कब से कब तक चली, टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस took place बेटा जी। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 में, ठीक है। सेकेंड हुई कॉन्टिन्यूसली इन द सेम 1931 में, और सेकेंड हुई 1932 में। इनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी आपके साथ, बट फर्दर ये जो साइमन कमीशन अपोज किया गया, ये सब चल रहा था, ठीक है। अब गांधी जी ने देखा, गांधी जी ऑब्जर्व दैट कि इन रिटर्न ब्रिटिश वर यूजिंग व्हाट, harsh measures to suppress the activities of Indian, as we have lost Lala Lajpat Rai in the lathi charge in opposing of Simon Commission in 1928, fine। तो बेटा जी अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को हम बाद में लेंगे। तो ये सिनेरियो चल रहा था तब जो यंग लीडर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने क्या किया कि 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ, 1930 में लाहौर सेशन जो कब हुआ, 1929 में हुआ। 29 में होने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया उन दैट लाहौर सेशन कि इंडिया वुड डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इस सेशन में, लाहौर सेशन में इंडिया ने डिमांड रखी किसकी, पूर्ण स्वराज के, हमें पूरी आजादी चाहिए भाई, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर रहे थे साइमन कमीशन के अंडर क्या, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या था कि हमें आधी अधूरी आजादी दे रहे थे, ठीक है।
मींस हमें फ्री तो कर दिया जाएगा, लेकिन जो भी डिसीजन लिए जाएंगे किसके अंडर लिए जाएंगे, अंडर द फ्लैग ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, तो ये हमें चाहिए ही नहीं था, डोमिनियन स्टेटस भारत को नहीं चाहिए था। भारत को क्या चाहिए थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहिए था। ठीक है, इसीलिए तो साइमन कमीशन को अपोज किया गया कि वो तो सारे मेंबर ब्रिटिश हैं और भारत के संविधान के बारे में वो क्या प्रॉब्लम्स, भारत के बारे में हमारी क्या जो हमारी प्रॉब्लम्स को क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे और हमें क्या अच्छा दे पाएंगे उससे रिलेटेड, कुछ भी नहीं, because neither they belong to our country nor they were aware about our sufferings. That's why तो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड को लार्ज स्केल पर अपोज किया गया अंडर as it was proposed by the commission. Fine. And in 1929 लाहौर सेशन में बेटा डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज was raised there, and Jawaharlal Nehru in his speech declared that 26 January, ठीक है, 26 January 1930 would be declared as the day of complete independence. But गांधी जी ने सोचा कि हाँ ये बात तो सही है, और इसी आइडिया को, इसी एक जो हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था जो हमारे दिमाग में चल रहा था, जो हमारे सामने अभी फिलहाल सॉलिड शेप में नहीं था, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक कंक्रीट आइडिया बनाने के लिए गांधी जी ने डिसाइड किया दैट ही वुड स्टार्ट व्हाट, अ लार्ज स्केल movement, that was Dandi and civil disobedience movement. Dandi march, and along with किसके साथ स्टार्ट करेंगे, civil disobedience movement के साथ क्या स्टार्ट करेंगे, Dandi march in 1930. फाइन, तो अब बात कर लेते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की। ठीक है, इसके साथ साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो 1930 में हुई बेटा जी, इसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एंड वन मोर पर्सन वाज देयर, तेज बहादुर सप्रू। कौन थे, तेज बहादुर सप्रू। याद रख लेना, ये दो ही ऐसे मेंबर थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया। एक तो बी आर अम्बेडकर जी थे और दूसरे कौन थे, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, एंड तेज बहादुर। अब मैं रीजन बताऊंगी कि क्यों गांधी जी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, देखिए, अब गांधी जी ने डिसाइड कर ही लिया था कि दांडी मार्च स्टार्ट करना है, क्योंकि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन से इस वे में डिफरेंट था। नॉन कॉपरेशन में तो सिर्फ कॉपरेट नहीं करना था, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस में क्या करना था, ब्रेक डाउन द ब्रिटिश रूल्स। ठीक है, कि एक तरह से उनके रूल्स को डिफाई करना था, ब्रेक करना था। ठीक है, ब्रिटिश के कानूनों को तोड़ना था। फाइन, और अब गांधी जी ने 31 जनवरी को एक लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा, स्टेटेड 11 डिमांड, 11 डिमांड्स के साथ गांधी जी ने एक लेटर भेजा किसके पास, लॉर्ड इरविन के पास, जिन्होंने प्रपोजल दिया है किसका, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का ना, तो एक पीसफुल कॉन्फ्रेंस हम बुलाएंगे भारतीयों की और ब्रिटिश की, कि भाई समझौता कर लेते। फाइन, तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, फाइनल अल्टीमेटम दे रहा हूं, अगर 11 मार्च तक मेरी 11 डिमांडें पूरी हो गई, 11 डिमांड्स पूरी हो गई, सॉरी 11 मार्च 1930 तक अगर मेरी 11 डिमांड्स फुलफिल हो गई तो ठीक है, आई विल टेक पार्ट इन व्हाट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, अदरवाइज आई विल स्टार्ट व्हाट, दांडी मार्च, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट मार्च। दांडी मार्च अनदर नेम इज सॉल्ट मार्च। गांधी जी क्या स्टार्ट कर देंगे, सॉल्ट मार्च। क्यों कर देंगे सॉल्ट मार्च, सॉल्ट मार्च को ही चूज क्यों किया, कारण क्या था इसके पीछे, सोचो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। गांधी जी को पता था कि ऑलरेडी वी नो दैट कि बहुत सारे टैक्सेस भारत वाले पे कर रहे हैं, भारतीय लोग बहुत सारे टैक्सेस दे रहे हैं, और भारत में सॉल्ट नेचुरली ऑब्टेन किया जाता था, कहां से, कोस्टल रीजन से। ठीक है, कोस्टल रीजन से नेचुरली हम सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते थे, बट स्टिल ब्रिटिश ने हमें उस चीज के लिए रोक दिया था। ठीक है, अब रोक दिया था तो गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स, गांधी जी को लगा कि मुझे एक फ्री भारत चाहिए, अपने भारतीयों को एक फ्री भारत देना है, ठीक है, फ्री इंडिया देना है, और इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक कंक्रीट आइडिया बनाने के लिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिसमें सिर्फ सहयोग ही नहीं करना होगा, इवन सहयोग ना करने के साथ साथ क्या करेंगे,
ब्रिटिश के रूल्स को तोड़ेंगे, ठीक है, ब्रिटिश के कानूनों को तोड़ेंगे, फाइन, जिससे क्या होगा, ब्रिटिश को एक मॉरल थ्रेट मिलेगा कि अब इंडियन उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी नहीं है। ये सिनेरियो कब चला, 1930 में चला, ठीक है। अब दांडी मार्च के बारे में एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में we will discuss in further video. Today till here, thank you so much. If there is any doubt from your side, so you can comment in the comment section, and very thankful to you to give your support. Thank you so much.